तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल पा रही है. Won't get treated here. Like as an immigrant, you are literally starting from scratch. Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're all doing fine and staying safe. My name is Harleen, and on this channel I create content about student life in Canada and just about my life. Well, in this video we will talk about why are immigrants leaving Canada and moving to India permanently. And if you scroll TikTok here, like in Canada, you will see so many videos about people who are permanently moving from Canada, and there are various reasons that we will discuss in this video. If you're planning to come sometime soon, this is a very good video for you. Like, I am not trying to demotivate anyone, I am just trying to help you in a way that you are already prepared. So make sure you watch this full video and also prepare ahead if you're planning to come to Canada in coming future, because मुझे आजकल बहुत messages आ रहे हैं on my Instagram, even on my LinkedIn, like about students and working professionals asking कि क्या ये right time है Canada आने का, especially because of high inflation, recession, कि economy में इतना कुछ चल रहा है that people are concerned कि is it a right time to come to Canada. Let's get into the video. So I came to Canada in 2016 and अब क्या 2023, so almost been 7 years since I am in Canada, and Canada has changed a lot. Like बहुत सारे changes आए हैं Canada में in past 6-7 years, which I will share in this video. When Canada is expecting lot of immigrants to move back to their home countries permanently, and here's why. First and foremost reason is affordability and cost of living. So when I, just an example, जब मैं Canada आई थी तो एक like milk का bag was like $3.40-50, and now it's almost double. So inflation in past 2 years has almost doubled. तो क्या है कि जो grocery मेरी पहले $50-60 की आती थी, now that same grocery is like more than $100. तो affordability लोगों की बहुत कम हो चुकी है, but the wages, जो हमारी minimum wage है Canada की, it is almost the same, not the same, but like अगर चेंज होती भी है, just changes by 20 cents 30 cents, so उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. If you think about buying a house, especially in Ontario, British Columbia, you can't afford it. Like even if I think about buying a house right now, it's not as easy in Ontario, क्योंकि Ontario में prices, housing price इतना ज़्यादा high हो चुका है कि person who is like earning decent wage, decent job, like I do a corporate job, so it's not as easy. Like that is why a lot of people are moving to Alberta, क्योंकि Alberta में houses के price अभी भी affordable हैं, but especially in Ontario, in British Columbia, prices have gone up so high. Like inflation इस time पे पीक पे है कि कोई भी चीज़ अगर आपको बाय करनी है, it is very expensive. Rental prices have gone up. Like अगर आपको रेंट भी करना है कोई अपार्टमेंट या फिर कोई प्लेस, it has gone up rapidly. जैसे जब मैं आई थी in 2016, जो मेरा फर्स्ट हाउस था जो मैंने रेंट किया था, it was $570. Like उस टाइम पे मुझे बहुत हाई लग रहा था, but now that same house is about more than $850. तो you can see the comparison कि इतने ज़्यादा हाउसिंग प्राइजेस बढ़ चुके हैं, इतने ज़्यादा हर चीज़ का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो हमारी वेज है वो उसको compete नहीं कर पा रही. जो हम अर्न करते हैं दैट इज नॉट लाइक कंपीटिंग. इन्फ्लेशन इतनी हाई है, बट जो हमारी अर्निंग है उस हिसाब से हमारी अर्निंग नहीं बढ़ रही, विच इज़ द रीज़न वाई कि जो अफोर्डेबिलिटी है आजकल बहुत कम हो चुकी है. सेकेंड इज़ हेल्थ केयर. वेल, Canada promotes कि their healthcare is free, but let me tell you that it is not free. Only basic is free, and that too it comes with lot of delays. कि just an example, like I had to meet a dermatologist because I was getting really bad acne. But क्या हुआ कि dermatologist का waiting time was 8 months. And just imagine कि अगर कोई serious issue हो, आपको कोई serious problem हो, you won't get treated here. That's the fact. Like आपको right time पे treatment नहीं मिलेगा.
इवन फॉर माई लेज़र, जब मैंने आईज़ की अपनी लेज़र करवाई, आई गॉट इट डन फ्रॉम इंडिया, बट हेयर इट वॉज लाइक 3 lakhs, बट इन इंडिया आई गॉट इट डन फॉर 1 lakh. तो आप प्राइस डिफरेंस देख सकते हो. दे से दैट इट्स फ्री, ओनली बेसिक इज़ फ्री, लाइक कोई कफ है, कोई मतलब बेसिक आपको कोई प्रॉब्लम है, दैट इज़ फ्री. इवन डेंटल हेयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव. अगर आपको कोई ब्रेसेस करवानी है, फिलिंग्स करवानी है, it's expensive. And even I've heard that कि emergency में लोगों को वेट करना पड़ रहा है. So what it means कि अगर जितना टाइम आप literally death bed पे नहीं हो, they won't treat you. That's how the healthcare system here in Canada is. And even UK का भी same ही है, like UK and Canada, they say that it's free, it's very expensive. So I highly suggest कि अगर आपको कुछ भी serious या कोई भी issue होता है, consult with doctor in India, you will get a better treatment than consulting a doctor here. क्योंकि I have had various different experiences कि जहाँ पे मुझे प्रॉपरली गाइड नहीं किया गया इन कैनेडा, बट इंडिया में यू गेट, बिकॉज प्राइवेट डॉक्टर्स आर देयर एट एनी टाइम, लाइक दे आर अवेलेबल 24/7, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है. बट हेयर इन कैनेडा यू कांट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट हेयर. थर्ड इज high taxes. Well, if you are not aware about the tax system in Canada, let me tell you that taxes play a huge role in your income. So just an example, if you are earning $1 lakh here, तो आपकी पॉकेट में अबाउट $65,000 to $70,000 ही आएंगे, क्योंकि टैक्स इतना ज़्यादा हाई है. लाइक इन ऑन्टारियो कोई भी चीज़ परचेज कर लो, आप चाहे फ़ोन या कोई टेक ले लो, कोई शॉपिंग का कुछ ले लो, taxes are very high. Even if you're buying a house, taxes are huge. तो लोगों को ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं कि रीज़न इज़ कि जो आप अर्न कर रहे हो, तो आप अपना बजट उस हिसाब से सेट करते हो. बट एट द एंड ऑफ द डे जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, टैक्स कट के आता है, तो जो आपकी आफ्टर टैक्सेस जो आपकी इनकम रह जाती है, दैट इज़ वेरी लो. जो आपको लाइक टैक्सेस इतने ज़्यादा पे करने पड़ते हैं. दैट्स अनदर थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर व्हेन यू आर प्लानिंग आउट योर बजट, कि आपको टैक्सेस भी डिडक्ट करने हैं फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीथिंग. यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग हियर इन कैनेडा. Next is home sickness, and that is something that every immigrant goes through. तो मुझे बहुत DMs आते हैं कि हाउ डू वी गेट रिड ऑफ होम सिकनेस. लाइक यू कांट fully get rid of homesickness, like you do feel lonely here, and I have been in Canada like from past 6-7 years, but still like मुझे भी अपनी फैमिली की याद आती है. कोई भी फेस्टिवल होता है, दिवाली, होली, I miss my family a lot, and there is no solution to it. Like you can't just go back like every time you miss them, right? You have to get used to it. तो कुछ लोग हैंडल नहीं कर पाते ये चीज़, एंड स्पेशली जब विंटर्स आती हैं, इट गेट्स लिटिल डिप्रेसिंग फॉर पीपल, क्योंकि आपको बहुत लाइक सनशाइन नहीं मिलती, यू डोंट गेट सनलाइट दैट मच, तो थोड़ा डिप्रेसिंग फील करता है बंदा. तो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि इट्स नॉट जस्ट यू. बहुत कोई भी आता है, लाइक कोई भी अपनी होम कंट्री छोड़ के आता है, दे डू फील होम सिक. आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा, देन यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि हाँ, लाइक आई हैव टू डील विद इट. Make friends here, try to keep yourself busy, talk to your family every day. तो ये चीज़ें help करती है, but obviously you are away from your family, so you will get homesick for sure. Next is harsh weather, like winters. So winters का क्या है कि sunlight बहुत कम हो जाती है, like during the winters, and winters last for like five months I would say. तो क्या होता है कि बिकॉज सनलाइट नहीं होती, डेज बहुत छोटे लगने लग जाते हैं, तो कुछ लोग डिप्रेशन में या लोनली फील करते हैं, एंड it does get hard to adjust to winters, right? But the thing is, if you buy a good winter jacket, if you buy good winter boots, तो वेदर तो एडजस्ट हो जाता है, बट दैट लोनलीनेस जो आपकी रहती है, दैट यू हैव टू डील विद इट. तो
कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हाँ वेदर बहुत ख़राब है कनाडा का, तो दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट टू इट. That's another factor that is causing these immigrants to move away. तो बहुत सारे disadvantages आ गए. Next is higher expectations. This is mostly for working professionals. जो लोग आते हैं like जिनके पास bachelor's या master's degree होती है, they also have some work experience. उन लोगों को क्या होता है कि यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम स्क्रैच एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. बट कुछ लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते. सो से इफ़ यू आर अ मैनेजर in India, but here you have to be ready कि आपको like जूनियर रोल से भी स्टार्ट करना पड़ सकता है. तो कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है एंड दे गेट डीमोटिवेटेड. बट ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट यू नीड टू समटाइम्स स्टार्ट योर लाइफ from scratch. And sometimes it's like they have higher expectations कि हाँ जाके मुझे मैनेजर की जॉब लग जाएगी. एंड इवन सम स्टूडेंट्स दे थिंक कि मुझे तो रेस्टोरेंट में जॉब नहीं करनी, मुझे तो सीधा कॉल सेंटर में या फिर कोई और जॉब चाहिए, लाइक सिटिंग जॉब चाहिए. गाइज इट्स नॉट एज ईजी. लाइक इवन व्हेन आई केम टू कनाडा मैंने बहुत सारी ऑड जॉब्स की हैं, बहुत सारी सर्वाइवल जॉब्स की हैं, जैसे कि वर्किंग एट टिम हॉर्टन्स. टिम हॉर्टन्स मैंने बहुत डिफरेंट टिम हॉर्टन्स में काम किया है, लाइक डिफरेंट एज इन लाइक डिफरेंट लोकेशंस पे काम किया है एट टिम हॉर्टन्स. एंड फूड इंडस्ट्री में काम किया है. लाइक सो इट्स कॉमन. इट्स लाइक डोंट हैव वेरी हाई होप्स. अपना माइंड ऐसे बना के आओ कि यू हैव टू डू व्हाट यू गेट देयर. कि लाइक आप कोई भी अगर जॉब मिलती है एटलीस्ट दैट विल हेल्प यू गेट योर सेकेंड जॉब. एटलीस्ट दैट विल हेल्प यू गेट सम गुड बेसिक स्किल्स. डोंट हैव रियली हाई होप्स क्योंकि एज एन इमिग्रेंट यू आर लिटरली स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो आपको कुछ भी करना पड़ सकता है. यू might have to do a survival job once you land here, which is very common. यहाँ पे कोई जॉब छोटी या बड़ी नहीं है. all the jobs are equal. So ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो you will be earning very low. यहाँ पे एक minimum wage set है. Like you will definitely be earning a certain amount per hour. तो वो wage set है by the government. तो ऐसा कुछ नहीं है कि छोटी जॉब है या बड़ी जॉब है. Don't just have very high hopes. मेक योर माइंड कि आपको कोई भी जॉब करनी पड़ सकती है once you come here. Next is job opportunities. Like if I talk about Canada in 2023 and if I talk about Canada that was back in 2016, there's a huge difference. 2016, 17, even 2020 तक it was very easy for students to find a part-time job. But अब क्या है, because of recession बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ्स कर रही है, कॉस्ट कटिंग कर रही हैं, विच इज़ वाई दे आर हायरिंग लेस पीपल. तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब. सेशन का टाइम है, इन्फ्लेशन इज़ रियली हाई, कंपनीज क्रॉस कटिंग कर रही हैं, कंपनीज इतनी हायरिंग नहीं कर रही, देयर आर हायरिंग फ्रीज गोइंग ऑन. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल पा रही है. द ओनली सॉल्यूशन टू इट इज़ बी पेशेंट, क्योंकि इट डज टेक टाइम. इवन इन 2016 मैंने केम, मुझे भी 2 months के बाद ही जॉब मिली थी. जस्ट बी पेशेंट. होपफुली जो समर आ रही है, समर में बहुत सारी हायरिंग होती है कंपेयर टू विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में ज़्यादा हायरिंग होती है क्रिसमस के टाइम पे. जब क्रिसमस ब्रेक होती है तब बहुत हायरिंग होती है. बट इन समर्स में हायरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू विंटर्स. सो बी प्रिपेयर्ड, गेट योर रेज्यूमे रेडी, एंड बेस्ट इज़ कि गो इन स्टोर एंड अप्लाई, ना कि ऑनलाइन इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता जितना इन स्टोर जाके आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. सो डू दैट एंड बी पेशेंट. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप इट वॉज हेल्पफुल इन सम वे. दिस वॉज नॉट टू demotivate you at all. And let me know in the comment section if you want more such videos and if you have any other questions. I will see you in the next one. Bye.